السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا بیسٹ ناول یقین محبت کی ایپیسوڈ نمبر 17 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بے یقین سی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گھر میں ہوتی اس عجیب سی صورتحال میں خوف زدہ سی تھی۔ پلیٹ اس کے ہاتھ سے گرتے ٹوٹ گئی تھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، وہ گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے نزدیک کالر پکڑتے چلائی تھی۔ دارین کی سرخ لہو آتے آنکھیں تہس نہس کرنے کو تھیں۔ وہ اذان کو پہلی دفعہ شدید غصے میں دیکھ رہی تھی۔ معاملے کی بڑھتی سنگینی پر اس کے ہاتھ پاؤں سن کر گئی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے شرمندہ ہوا تھا جب اس کی اگلی حرکت نے وہ ملال بھی ختم کر دیا۔ یہ تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے، اسٹرین یور لمٹس۔ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے جھٹکتے شدید غصے میں بولا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں اذان، اور تم دیکھو کہ تمہاری وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی۔ وہ آنسوؤں کی روانی میں اس کی جانب لال چہرہ لیے پلٹی تھی۔ ریحا کو اس لمحے جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالی تھی۔ بے ساختہ نظروں نے ثانیہ بیگم کو ڈھونڈنا چاہا جو معاملہ سنبھالنے پر وہ شاید نیچے تھی۔ وہ اس کو چپتی نظروں سے دیکھتے روم کی جانب چلی گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سے وہ دل تھام گئی تھی۔ رک ریحا، آئی ایم سوری۔ وہ کیا سمجھ گئی کہ آہستہ دم میں کہا۔ اذان شرمندہ سا اس کے بے تاثر چہرے کی جانب دیکھتا بولا تھا۔ ریحا سن رہی ہو مجھے؟ وہ اس کے نزدیک ہوتا کہ وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے 2 قدم دور ہوتے پرے ہو گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے اذان، پلیز اپنی بیوی کو ہینڈل کرو، مجھے نہیں چاہیے کوئی سوری۔ وہ مزید قدم بڑھتی جب اسے پھر سے روم سے باہر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی طنز بھری مسکراہٹ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی، جیسے اس کی خود میں گڑتی نظریں اس کے وجود کو خاک کر ڈالیں۔ مجھے تمہارے ساتھ اب ہرگز نہیں رہنا، 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ آزادی محسوس کرو تم اس کے ساتھ یا پھر جس کے ساتھ مرضی تمہارا دل چاہے۔ اس کی زہر خوان زبان ابھی بھی نہیں رکی تھی۔ روم میں جاؤ، یہ تماشا پیدا کرنے کی وجہ فضول ہانکنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر تم نے 1 قدم بھی گھر سے نکالا تو مجھ سے برا آج کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بڑھتے قدموں پر پورٹی سے اس کی کلائی پر مضبوطی کیے غرایا تھا۔ ریحا کو اپنا آپ مجرم سے کم نہ لگا۔ ثانیہ بیگم کی آواز سے یکدم ریحا کے وجود کو سکون مل گیا تھا جو شاید معاملہ سنبھال لیتی۔ دارین کہاں جا رہی ہو؟ اذان کیا ہے یہ سب؟ وہ اس کو اس طرح لاؤنج میں دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ بڑی ماما آپ اسے سمجھائیں، دارین آپ کیوں ایشو بنا رہی ہیں؟ بات اتنی ہی نہیں ہے، تحمل سے سوچیں ذرا۔ ریحا نے دھڑکتے دل سے تب سے اب اپنے لب آ کیے تھے۔ دارین بیٹے معاملہ تو بتا دو، ایسے حالت میں کہاں جا رہی ہو تم؟ ثانیہ بیگم نے نرمی لیے قدرے سمجھاتے اس کی بھیگی آنکھیں اور سرخ چہرہ دیکھتے کہا۔ اذان کی مضبوط گرفت سے کلائی چھڑواتے ہوئے ان کے روبرو ہوتے چلائی۔ یہ سامنے معصومیت کی دیوی اور اپنے بیٹے سے پوچھیں جس کی تربیت میں آپ کی شدید کوتاہی ہے۔ ہاتھ اٹھایا ہے مجھ پر اس نے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس نہ کیا تو کہنا آپ لوگ، اور آج مجھے روکنے کی تو بالکل کوشش نہیں کریں آنٹی، نہ مجھے 1 سیکنڈ بھی رہنا ہے یہاں۔ آپ وہ بولتے سیڑھیوں کی جانب چلی گئی تھی۔ ریحا سر تھام گئی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا؟ ریحا تم بتاؤ کیا بات ہو گئی آخر ایسی جو اس نے اس کی حالت کو سوچے بغیر ہاتھ ہی اٹھا دیا؟ اذان کی جانب دیکھتے غصے سے بولی جو ضبط کیے تھا، دفعہ ہونے دے سے زندگی عذاب کی ہے۔ وہ اس کو سیڑھیوں کی جانب دیکھتے قہر آلود نظریں ڈالتے بولا۔ یو ول پے دس اذان، اس شکل سے، رنگ سے، ہر لحاظ سے مجھ سے معمولی لڑکی کے لیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بہتے آنسوں سے بمشکل جکراتا سر سنبھالے سیڑھی اترتی جا رہی تھی۔ اب آدھی سیڑھی بمشکل عبور کی تھی کہ اپنے دوپٹے میں الجھتے وہ سنبھل ہی نہیں پائی تھی۔ اس کی دلخراش چیخ سے ثانیہ بیگم کو چند لمحے پہلے ہوا معاملہ بتاتی ریحا کے آواز بری طرح معطل ہو گئے تھے۔ اذان کو آواز دیتے وہ دونوں اس جانب تیزی سے آئی جو سیڑھیوں سے نیچے خون آلود زمین پر در سے کراہ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے بولی تھی، یا اللہ اسے کچھ نہ ہو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یا مسلسل گرمی اس کے لیے دعائیں مانگتے خود کو کوس رہی تھی، ان اموں کو کوس رہی تھی جب اذان اس کے پاس بیٹھا اور یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ جو بھی تھا اس لمحے اس کی حالت کے پیش نظر فکر تھی۔ یا خود کی طبیعت نہیں خراب کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ بی جان اس کی حالت کی نظر کی وجہ سے اس کے ساتھ گھر پر ہی رکی تھی جو مسلسل پریشان سی تھی۔ بی جان میری وجہ سے، وہ روتی ان کی گود میں چہرہ چھپائے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا ریحا۔ وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں گائنی وارڈ کے باہر وہ سر تاثرات لیے تھا۔ چند لمحے پہلے دارین کی غیر حالت سے اذان ریش ڈرائیونگ کیے اسے ایمرجنسی لے آیا تھا۔ نائمہ اور ثانیہ بیگم اس لمحے اس کے ساتھ تھیں جو خوفزدہ سی تھی۔
डॉक्टर के आधे घंटे बाद बाहर आते ही उसके जाने मतवज्जा हुए। वो तेजी से उस जगह पाया जहाँ सानिया और नईमा बेगम भी इस्तफसार कर रही थी। कैसी है मेरी बीवी और बच्चा? वो बेचैनी से उसके चुप होने पर गहरी खामोशी तोड़ते बोला था। आपकी बीवी ठीक है अब, लेकिन गिरने की वजह से इनकी बैक पर काफ़ी चोट आई है। वो कुछ पुरसकून हुआ था। और बेबी, वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला था, आपकी बीवी की क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। वो आंखें बंद करते आंसू पीने की सही करने लगा। दिल में तकलीफ की लहर दौड़ी थी। सानिया और नईमा बेगम तो खुद आने वाली इस सूरत से शदीद परेशान थी। अजहान, उसे ज़रूरत है तुम्हारी, जो भी था, लेकिन बुरा हुआ है। उसके साथ वो कुछ बोल नहीं रही। सानिया बेगम ने उससे मिलने के बाद आते उसे समझाया था। वो गहरी सांस भरते उसके रूम की जानिब किया। दरवाज़ा आराम से बंद किए वो उसकी जानिब हिम्मत करते आया था जब बिस्तर पर पड़ी छत को मुसलसल घूर रही थी। उसकी मौजूदगी बातें भी वो खामोश थी। काश मैं तुम्हें ज़बरदस्ती रूम में बंद कर देता दानी। उसका ड्रिप लगा हाथ थामते वो नदामत भरे लहजे में बोला था। उसके आंसू तकिया भिगोने लगे थे। वो देखता रह गया था। आई एम सॉरी। उसके माथे पर झुकते वो गलती न होने के बावजूद लब रखते एतराफ़ कर गया था। तुम जिम्मेदार हो सबके अजान, तुम हर चीज़ के, तुम मुझे। वो आंसू में बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं चाहा था, बल्कि कोई भी माँ शायद ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ हर्ट नहीं करो खुद को, जो होना था हो गया, सब्र करो। मेरी बात मान लेती तो शायद ना होता ऐसा। उसका ड्रिप लगा हाथ थामते नरमी से बोला था, दूर दूर रहो मुझसे। तुम्हारी वजह से मैंने ये नुकसान उठाया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम खुश हो जाओ, वैसे भी ये वजूद अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे। अब खुश हो जाओ, तुम बरी समान हो गए। वह तकलीफ दबाए हाथ इसकी गिरफ्त से खींच चुकी थी। इस लम्हे उसका दिल चाह था दाड़े मारते रोए, पर अपने अंदर पख्ता लावा दबाए खुद पर जब्त किए हुए थी। मैं नहीं चाहता था, वो शदीद सदमे में हुआ था। तुम होश में हो दानी? तुमसे शादी की वजह यही थी मेरी। तुम क्यों इतनी नेगेटिव हो गई हो? ऐसी तो हरगिज़ नहीं थी तुम। उसका रवैया उसे मज़ीद परेशान कर रहा था, जबकि वो बेआवाज़ रो रही थी। अच्छा, काम डाउन, रिलैक्स रहो। वो उसकी तबीयत के पेश नज़र बहस में हरगिज़ नहीं पड़ना चाहता था। दानीन, उसकी माँ की आवाज़ सुनते अजान ने सरत से दरवाजे की जानिब देखा था। अब जाने क्या होना था। मामा, आई लॉस्ट माई चाइल्ड, वजह ये सब लोग हैं। वो उनके गले लगे रो रही थी। अजान उसकी हालत के पेश नज़र फ़िलहाल मज़ीद बोलने से बाज रख के लब भींच के रह गया। आप लोग घर चले जाएं, मैं यहीं हूँ। आज रात सुबह डिस्चार्ज हो रही है वो। शाम को घर आते सीढ़ियाँ बोर करते गैर मामूली सन्नाटे का सामना हुआ। वो टाई के नॉट ढीली करते ड्रेसर पर रखते उसकी तलाश में बाहर आया था, जबकि अपने बाप के अलावा इसे कोई जीरो न दिखा। बाबा सब कहाँ है? मामा और बाकी लोग? वो छोड़ के कफ मोड़े वहाँ लाउंज में ही आ गया था। तुम्हारी माँ और अजान दानीन के साथ हॉस्पिटल है। रिहा भी जान के साथ है नीचे शायद। वो टीवी के चैनल सर्च करते ही बोले, खैरियत? वो सोफे की पूंछ से टेक लगा गया। नहीं, मुझे भी शाम को पता चला है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। ओह, मुझे रिलैक्स हुआ था, उठ बैठा था। वो नीचे भी जान के रूम में की जानिब गया। ये जहाँ है। वो उनके बिस्तर पर पड़ी रिहा को देखते बोला, अहान। वो चंद लम्हे पहले दुखती मूंदी आके उसकी आवाज़ से खोल गई। रिहा, क्या हुआ, तुम रोई हो? वो उसकी सुर्ख आंखें देखते बोरे से बेड पर उसके नज़दीक किया था। नहीं तो। वो नजरें चुरा गई थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, बीजान मुझे नहीं जाने दे रही थी। वो दानीन गिर गई। ऊपर से अब कोई फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा, पता नहीं कैसी है अब। वो इस तरह की हालत में बोली, हाँ तुम पहले फ्रेश हो बेटा, फिर इसे ले जाना। दानीन के गिरने की वजह से परेशान है ये। वो इसको ऑफिस के गले में देखते ही बोली थी, चलो रूम में जो होना था हो गया, खुद तो कम से कम स्ट्रेस नहीं लो। उसकी परेशानी पर वर्दे पड़ते बोला। उसके माथे पर आई चंद शिकने देखती रह गई। परेशानी की वजह जो थी वो इसे खाई जा रही थी। कपड़े चेंज करो, हुलिया दुरुस्त करो अपना, फिर ही मैं लेके जा रहा हूँ। उसको रूम में लाते हुए साख्ते से उसका बिखरा मलका जैसा हुलिया देखते बोला, मैं सही हूँ। खुद को देखते तेजी से बोली थी, बिल्कुल नहीं, फ्रेश हो, मुँह शक्ल भी दुरुस्त करो, फिर जा रही हो तुम मेरे साथ। वह करते कपड़े लेते हुए चेंज करने चला गया था। मेरा तैयार होना हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा कभी भी। वो कुछ उल्टा सीधा ना आपके सामने बोल दे। वो कबर से कपड़े लिए खुद से बोली,
ہاسپٹل کا نام پتہ ہے؟ وہ گاڑی پہنچ سے نکالتے ریورس کرتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی ماما سے بات ہوئی تھی تب پوچھا تھا، پھر اب تو وہ کافی ٹائم سے فون ہی نہیں ریسیو کر رہی ہیں۔ وہ سیٹ بیلٹ درست کرتے بتا رہی تھی۔ یہ بات کیا ہے؟ اس کی پریشانی بانپتے ڈرائیونگ کے دوران اس کی شکل پر پریشانی دیکھتے بولا تھا، جو خاموش تھی ورنہ وہ کبھی بھی یوں چپ نہیں بیٹھتی تھی۔ کچھ نہیں ہے، خواہ پریشان نہیں ہو۔ وہ سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر گئی تاکہ وہ مزید سوال نہ پوچھے۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں روکتے اس کے ہم قدم ہوتے۔ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے تھے، ریسیپشن سے پوچھتے گائنی وارڈ کی طرف جاتی، لفٹ میں داخل ہوئے۔ سامنے ایک کوریڈور میں انہیں ثانیہ اور نائمہ بیگم دکھی تھیں۔ وہ دونوں اس ثانیہ بڑھے۔ ریحا تم کیوں آئی ہو؟ ہم بھی بس آنے ہی والے تھے واپس گھر۔ نائمہ بیگم نے اسے دیکھتے کہا۔ کیسی ہے دانین؟ وہ نظر انداز کیے بولی۔ ٹھیک ہے پر شکر ہے۔ وہ کب سے روکا سانس بحال محسوس کرتے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں مل لیتی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ اس کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ ریحا کی چند لمحوں پہلے والی خوشی مانند بڑھ گئی تھی، جبکہ اب اذان اور ثانی بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے روم میں گئی جہاں وہ بستر پر پڑی تھی، وہ سب بھلا چکی تھی۔ دانین کیسی ہیں آپ؟ جواب ندارت تھا۔ اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی تھی اور وہ سر تاثرات سے بستر پر لیٹی تھی، جیسے اس کی آواز ہی نہ سنی ہو۔ دانین مجھے بہت افسوس ہوا سن کر، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود ہی مزید دل برداشتہ سی بولی۔ اسے کہیں چلی جائے یہاں سے۔ وہ خاصے غصیلے لہجے میں اپنی ماں کو بولتے چہرے کا رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا دانین آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہو گئی ہے، لیکن اذہان میرے بھائیوں جیسا میرا اچھا دوست بھی اور تم سے اس کا رشتہ جڑنے سے پہلے میرا کزن بھی ہے۔ دانین پتہ نہیں کیوں تمہیں ایسا فیل ہو گیا، اور تمہاری آج کی باتیں میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے شوہر کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی مجھ پر حرام ہے۔ بہرحال میں یہ صفائی ہرگز نہیں دینا چاہتی تھی، پر پھر بھی کلیئر کر رہی ہوں۔ یہ طے ہے اس سے ہرگز دوبارہ بات نہیں کروں گی جو تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ بے فکر رہو۔ ماما اسے کہیں چلی جائے یہاں سے، مجھے اس کی باتیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ میں چلی جاتی ہوں، بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ جو تمہیں برا لگا ہے تو سوری، لیکن پلیز خدا کے لیے میرے کردار کو نشانہ نہیں بناؤ کہ میں بغیر کسی غلطی کے اپنے گھر والوں اور اپنے شوہر کے سامنے ہی نظر نہ اٹھا پاؤں۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ ریحا اپنے پیچھے سے آتی اس کی تیز آواز سے وہ وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ دل خوف زدہ سا ہو گیا تھا۔ باجی جی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ وہ انہماک سے اسے رنگوں سے الجھتے اور چیزیں سیٹ کرتے دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا جہان سے بیگانی سی تھی، جیسے اس سے ضروری کام نہ ہو۔ خاموش رہو، وہ خوش ہونٹوں میں دبا ہی بولی۔ بال میسی جوڑے کی زد میں لپٹے وہ اس لمحے سرخ گھٹنوں تک آتی، لانگ شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں خوشگوار موسم کا حصہ بنی، دوپٹے سے بے پرواہ کنویکس پر جھکی تھی۔ پتہ تو چلے نا، کام والی جھنجھلا گئی تھی۔ اب بھی اسے 2 گھنٹے سے تنگ کی تھی، پہلے یہ سارا سامان منگواتے، جب بمشکل 3-4 اسٹیشنری شاپ پھرتے، ڈھونڈتے لائی، اور اب یہ سب اسے تب پاگل پن ہی لگا تھا۔ چارکول پینسل کہاں ہے؟ لائی تھی تم؟ وہ نظر انداز کیے ان ساری بکھری چیزوں میں سے پینسل ڈھونڈتے بولی۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، جہاں وہ اس کے سنگ رخصت ہو کر آئی تھی۔ یہ گھر اسے واقعی سکون دہ لگتا تھا، جہاں وہ اس کی زندگی میں شامل ہوتے آئی تھی۔ اچھا تو آپ یہ کیا بلا بنانے کی کوشش میں ہیں، یہ تو بتا دیں۔ وہ ترچھی پینسل چلاتے دیکھ پھر سے بولی، پر اس کا دماغ بلا کہتے وہ اچھا خاصا خراب کر چکی تھی۔ لفظ واپس لے اپنے بشرا، فوری سے واپس لو۔ یہ بلا نہیں، میری زندگی کا ون اینڈ اونلی اسپیشل پیس ہے۔ اسے سخت نظروں سے بونڈ کرتے وہ بولی۔ اس لمحے آنکھوں کے کنارے مسکرائے، گھنی پلکیں خود ہی چکتے عجیب منظر پیش کر گئیں۔ اس کا دل عجیب سے حیرت انگیز جذبات میں ڈوب سا گیا۔ اوہ مطلب یہ غازیان صاحب ہیں؟ کام والی سمجھتے مسکراتے بولی۔ اس کے گلابی لب مبہم سے مسکرائے تھے۔ وہ بالوں کی لٹ پیچھے کرتے پھر سے جھک گئی تھی۔ سمیٹو یہ سب، جب ہارن کی تیز آواز سے دھڑکتے دل سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ان کے لیے ہے تو وہ دیکھ لیں گے تو کیا حرج ہے، بلکہ آپ کی ایسی مہربانی دیکھتے تنگ ضرور ہو جائیں گے۔ وہ اس کے تیزی کرنے پر بولی تھی، وہ گھور کے رہ گئی تھی۔ ابھی نہیں، ابھی ہرگز نہیں، یہ 2 دن بعد کے لیے اس کے لیے سرپرائز ہے، خاص سرپرائز۔ اسے بالکل پتہ نہ چلے، سمجھی آپ، اور مجھ پر زیادہ دھیان نہیں دیا کریں۔ وہ ہڑبڑاتے چیزیں سمیٹتے آخری بات غصے سے بولی تھی۔ جی بالکل باجی، نہیں پتہ چلتا۔
वो तेजी से सब समेट रही थी, साथ उसे भी पागल कर रही थी। वह सब समेट स्टोर रूम बंद कर गई। बुशरा की चलती जबान पर वह बस घोल रही थी। लंच के दूध में मुस्कुराती आवाज़ें महसूस कर रही थी। नूर की जान निकलती जा रही थी जब आईन सामने उसकी माँ को देखा। वो खामोश हो गई, दिल वसवसों में गिर गया। खैर अच्छा मिला है वैसे मानी से। मजीद पीछे अनजान लड़की को देखते उसके हवास खत्म हुए। बाजी ये कौन है? बुशरा की सरगोशी पर वो चुप ही रही। वो खुद नहीं जानती थी उसकी माँ के साथ मौजूद सफ़ेद चेक शर्ट और ब्लू जीन्स मफलर गले में लपेटे मॉडर्न शोल्डर पर बिखरे बालों में वो लड़की कौन थी? नूर सामने थी। वो सूटकेस रख रहा था, मतलब वो रुकने वाले थे। उसे तो यही चीज़ नजर आई थी बस। मेहमानों के अदब बिल्कुल नहीं है इसे। अपनी माँ की धीमी कही बात पर गाज़ियान लब भींच गया। उस लड़के का वो कुछ नहीं कर सकता था जो हुक्म बनने के तासरात दे रही थी, जबकि वो लड़की भी उसका जायज़ा ले रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो खुद को हौसला देते करीब गई। वो मुरब्बत में जवाब दे गई, वरना एक आंख नहीं भर रही थी। नूर जी मेरी कज़न है आयरा, मेरे मामू की बेटी, जहाँ हम रहते हैं, मतलब जहाँ मामा रहती हैं। वो तारुफ करा रहा था। नूर खची का मतलब है हमारा जॉइंट घर। वो बेतकल्लुफ़ी से खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करते गले लगते बोली, लेकिन वो फिर भी ज़ब्त की रही थी। बुशरा साथ वाला कमरा साफ सुथरा और दुरुस्त हालत में है। अगर नहीं है तो मम्मा का सामान मेरे रूम में रखा है। वो सीधा काम वाले से अब मुखातिब था। मामा आप और आयरा रेस्ट करें, चाय आपके रूम में भिजवा देता हूँ और फिर लंच पर थोड़ी देर में मुलाकात होती है। हाँ मैं पहले सोऊंगी, फिर तुम्हारा शहर लाहौर देखूंगी। आखिर ऐसा क्या है जो मुंडा यहीं का होकर रह गया? वो नूर पर मुस्कुराती नजर डालते बोलती। उसे सुर्ख कपड़ों वाली लड़की प्यारी लगी थी। वो दोनों रूम में चली गईं। आप मुझे बता सकते थे उनके आने का आखिर क्यों नहीं बताया? अदब के तकाजे ने बातें चाय बुशरा के हाथ भिजवाते हुए रूम में थी। खुद तो वो उसकी माँ की जुबान से डरती थी। उसको शावर लेने के बाद अब मिरर के सामने खड़े शर्ट के बटन बंद करते देख रही थी। खुद मुझे सरप्राइज़ किया है उन्होंने। वो उसकी जानिब मुड़ते बोला, जो पिछले दिनों से उससे मजीद बेरुखी बढ़ाते उसे चिड़चिड़ा कर चुकी थी। जब तक वो यहाँ है इंसानों वाला बिहेवियर करना। वो बिस्तर पर गिरते तकिए पर सर रख गया। मतलब क्या मैं जानवर हूँ? वो उसकी जानिब रुख करते कश्मीरी लहजे में बोलते। दोनों पाँव ऊपर कर गई थी। ऐसा तुम कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सिंपली सिर्फ हैप्पी कपल बनना है हमें। वो बाजू आंखों पर रखा, मतलब मजीद नहीं बोलना। आपकी कज़न क्यों आई है? बात नज़रअंदाज किए दिल में है सवाल पूछते बोली, खामोश रहा था। मेरे सवालों का जवाब दे, फिर आंखें बंद करें। वह इसका बाजू हटा गई थी। गाज़ियान ने सुर्ख व नींद से भरी आंखें मुश्किल खोली थी, जो उसे फासले पर होते भी पता नहीं क्या जानना चाह रही थी। उसके अजीब तशवीश के तासुर देखते अपनी जानिब खींचते अपने शिकंजे में ले गया। फिलहाल सुकून चाहिए, मिल सकता है, बाद में फुर्सत में सवाल जवाब कर लेना। वो भारी आवाज़ में सरगोशी कर गया। उसकी चलती सांसें अपने चेहरे को छूते हुए महसूस करते नूर सांस रोके उसका चेहरा देखे गई। वो कई दिनों से फासला पर था। अचानक नज़रों की तपिश से बंद आंखें खोल गया। वो मैं शदीद शर्मिंदगी से वो नजरें झुका गई। शोर नहीं। होंठों पर उंगली रखते आंखें फिर से बंद कर गया। उसका लम्स होंठों पर महसूस करते वो हल्क तर्क करते सुकून महसूस कर गई, जो नींद में जाने से उसकी हरकत नहीं पाप सका। वो शदीद थका था। पिछले 2 दिनों से नींद की शदीद कमी थी। बामुश्किल दिन जमीलों से निकलते वो अपने बाप की सिफारिश से रिज्वाइनिंग दे गया था, लेकिन नया महाज ट्रांसफ़र का था जिसे आजकल वो हैंडल कर रहा था। अगर हुई भी तो चाह रहा था वापस इस्लामाबाद हो जाए, ताकि अपनी माँ को भी वापस अपने साथ रख ले, जो किसी सूरत अपना शहर छोड़ने पर कायल नहीं थी। लाइट ऑफ कर देना। उसको अपनी गिरफ्त से कसमसाता निकालते देख कर खड़बड़ ले गया। स्विच ऑफ करते उसको सोते देख वो चुप पल उड़ेजते बाहर आ गई। बुशरा के साथ मिलकर लंच की तैयारी करने लगी थी, जो उसे बताती जा रही थी। पिछले दिनों से बुशरा ही मेट के साथ कुकिंग का काम भी अंजाम देती। वो बीसी शादी तनख्वाह के बगैर एतराज़ के खा भी लेता था। बस रोटी बनाना नहीं आती थी, ना वो ये सब सीखना चाहती थी। इस मामले में वो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। खैर बुशरा की नीटनेस देखते वो अपनी निगरानी में उसे रोटी भी बनवा लेती थी, क्योंकि वह जानती थी गाज़ियान को इस चीज़ से चिढ़ थी। लेकिन वह फिर भी रेडी टू कुक ही प्रेफर करता। नूर बस देखती रह जाती कि असल मज़ा उसे घर बनी रोटी खाकर
आता ना कि वो महीनों फ्रोजन हुई चपाती खाकर, पर वो तो शायद आदमी था। वो किचन में हनोर सोचने में मसरूफ थी। बुशरा कटिंग बोर्ड पर प्याज काटने में मसरूफ थी। तुम तो टोटल चेंज हो। वह हैरानज़दा हुई आयरा उसका जायजा ले रही थी। आपको कुछ चाहिए था? वो इसे अब सफ़ेद कुर्ते और ब्लू जीन्स में बिल्कुल फ्रेश देख रही थी। कटिंग शुदा बाल कोने में बंद थे, चेहरे हर किस्म की आराई से पाक धुला था। मुझे अगर कुछ चाहिए भी हुआ मैं खुद ले लूँगी, तकल्लुफ़ की बात नहीं। मुझे सिर्फ समाप से मिलना था, तुम्हें गौर करना था। वो इसको गौर करने लगी। समाप? नूर उसकी बात पर चींप गई थी। उसने तुम्हारा नाम यही बताया था, बोला था एक छोटी सी बच्ची का टोर मैंने बर्बाद किया है, जो डार्क लिपस्टिक लगाना चाहती थी क्योंकि उसके पापा नहीं उसे लगाने देते थे। वो अपनी बोली बातें सोचते शर्मिंदा होती जा रही थी, पर एक बात थी, वो उसे अब बिल्कुल मोटी नहीं लगी थी। आयरा, गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? मानिए आपका बहू का इंटरव्यू ले रही थी। वो किचन में बनी विंडो से बाहर देखते बताने लगी। नूर ने देखा इनके तासरात वैसे ही थे, पहले जैसे तने से जज्बात से बिल्कुल आ रही। चलो नूर, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। क्यों मानिए आपकी छोटी सी बहू पर इतने बोझ नहीं डालते। वो वापस किचन में चहकते आई थी। वो इतना बोल रही थी, नूर को उसकी बातें बताते मुस्कुराने पर मजबूर करती जा रही थी। तुम्हें पता है, एक दफ़ा गाजियान हॉस्टल से वापस आया, मैंने उसकी पेस्ट फेस वॉश से बदल दी। फिर इसने गुस्सा किया होगा। वो उसको नफासत से सलाद काटते देख बोली, नहीं, वो सोच रहा था मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मुँह में बबल्स क्यों बन रहे हैं, और पेस्ट करने के बाद भी उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये फेस वॉश है। वो हंसते बोली। नूर सोच के रह गई, इतना सीधा तो और किस नहीं है। वो बहुत काम बनता है, हाँ, पर रिटर्न में ज़रूर देता है। उसने पता है क्या किया? रिटर्न में मेरे स्नीकर्स में एक कैक्टस रख दिया था, जिसे पहनते ही मेरी चीखें पूरे घर में गूंजी थी। वो ऐसी हरकतें भी करता था, वो सोच सकी थी। आप उसकी तरबियत में बहुत कोताही कर गई हैं आंटी जी। अफसोस है मुझे आपकी बेटी पर, उससे ज़्यादा आप पर। वो चुपते लहजे में उसकी माँ को देखते बोला। रिहा को अपने हाथ की हड्डी टूटती महसूस हुई। जिस पर वो मजबूती किया था, वह न आंखें झुकाए खौफज़दा थी। मतलब वो सब सुन चुका था। दानिन की माँ खामोश रही थी। इस बात का मकसद क्या था वो नहीं समझ सकी। हाँ, पर शर्मिंदा ज़रूर हो गई थी। आप भी तो एक ही घर में रहते थे, फिर आपका करैक्टर है क्या सीन था? आप दोनों का आखिर है तो आप भी उसी के भाई। रिया को लगा था वो उसके साथ के पर खच्ची उड़ाती उसके साथ कोई दानस्ता तौर पर निशाना बना रही है। क्या मैं तुमसे मुखातिब हूँ? वो पीछे जबरों से ताड़ा के अजान जो अंदर आ रहा था, वो वहीं थम गया था। अपना करैक्टर सर्टिफिकेट अपनी माँ से ही देकर दिखा दो। अगर उन्होंने ही तुम्हारे हक में तायद कर दी, फिर मेरे से करैक्टर के हिसाब किताब की बात करना, तो कोशिश भी न करना, वरना रिश्ता बुलाए सादत यहाँ से बुलाए ताक रख लूँगा। मिस दानिन हैदर। दानिन जो बिस्तर से टेक लगा गई थी, उसके सख्त अल्फाज सख्त महसूस किए अपने अंदर मजीद आग लगती महसूस हुई थी। कल शाम की बातें सोचती सुबह उसको खामोशी से बिस्तर पर पड़ी तैयार होता देख रही थी। वो 2.5 की नोट दुरुस्त करते हनोर संजीदा था। वो जिस देश में वापस आया था, वो उससे खौफज़दा थी। वह इससे मुखातिब हुआ था। वह वहाँ उसको यकीन की डोर थमाते ऐसी बेरुखी क्यों दिखा रहा था? रिहा की जान पे बनी थी। हान भी किसी आवाज़ थी। वो हिम्मत जमा करते उसको पुकारते। उसकी धड़कन मुंतशिर कर गई। वो कॉम्प्लेक्स बंद करता पल भर के लिए रुका, अगले लम्हे पर मसरूफ था। बिस्तर से निकलते उस तक गई जो खामखा एंग्री मैन बना था। आप नाराज़ हैं मुझसे? उसके सामने जाते वो सुर्ख आंखों से बोली थी। वो उसको रात वाले कपड़ों में बलगजे होलिये में देखता आराम से सामने से परे कर गया। मुझे लगा मेरे साथ वही हुआ जो मैंने आपके साथ किया था। आप भी मुझसे पूछेंगे, बिलीव मी आन, रेहा के दिल में आपके अलावा कोई भी नहीं। वो उसका हाथ थामते रोते बोली थी। वो तासुब से देखता रह गया। दिल चाह रहा है तुम्हारा मुँह थप्पड़ से सुर्ख कर दूँ, इससे पहले रोना बंद कर लो रिहा। वो हाथ चढ़ाते सख्त वलीय दूर हो गया था। वो जल्दी मानने वालों में से हरगिज़ नहीं था। वो जानती थी वो बेतहाशा ज़िद्दी है। शाम में मौसम के बदलते रंग देखने के बाद भी सारा दिन बोझल सा गुजरा। वो इससे नाराज़ था कि वो वजह जानने से कासिर थी। दानिन घर वापस आ गई थी। वह दुखते सर को दबा रही थी। अपनी आंखें जलती महसूस हुई। रिहा, दानिन को सूप दे आओ, कशीदगी भी तुम दोनों में कम हो। वो सानिया बेगम की आवाज़ सुनते नफ़े में गर्दन हिलाते आंसू पीने लगी थी। बड़ी मम्मा, मैंने कशीदगी नहीं पैदा की, मुझे उससे हरगिज़ अभी नहीं मिलना। वो अपने फजूल के फतूल दिमाग से निकाल दे, फिर उससे बात भी कर लूँगी।
वो खुद पे ज़ब्त किए थे। मैं कुछ टाइम अम्मा के पास जा रही हूँ। वो घड़ी पर नज़र डाल गई जहाँ 6 बजने वाले थे। उसके आने का टाइम भी करीब था, पर वो उससे सामने नहीं चाहती थी। जो छोटी सी बात पर उसे इतना नाराज़ हो जाता था, वो उड़ती की बुरी तरह चक्कर आया था। यहाँ वो फौरी से उसे थाम गई। वो धुंधलाती आंखों से मंजर देखने गई। तबीयत ज़्यादा खराब महसूस होने लगी थी। कहीं नहीं जा रही, बैठो यहाँ, हर किस समय नीचे जाने की इजाज़त नहीं है। अब मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी, सुनो तुमने, वो सख्त लहजे में बोली थी। कुछ खाया नहीं ना तुमने? वो दूसरा नुकसान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसे निपटते मुलाज़िमा को सूप का बाउल दे गई और उसे लेते कमरे में आ गई। बड़ी मम्मा, मुझे पेन। चंद लम्हों बाद वो दर्द से दोहरी हो रही थी। रिहा, उसकी जानिब आई, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। इतनी लापरवाह, वाकई ही तुम। आज मुझे अंदाज़ा हो गया है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं मम्मा, वो नफी करते आंसू से उसकी गर्दन किए थे। हान को फ़ोन करे मम्मा, हान को बस फ़ोन करते। वो उनका हाथ थामते दर्द से बोल रही थी। इसे रूम में ले जाते हुए डॉक्टर को कॉल करने के बाद उसे भी कर गई थी, जिसका फ़ोन बंद जा रहा था। डॉक्टर ने उसका प्रॉपर चेकअप किया था। बीपी बहुत हाई था और स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेने थे। बिल्कुल ठीक नहीं है इस कंडीशन में। बाकी इनका प्रॉपर चेकअप आप क्लिनिक में ही होगा। वीकली चेकअप कराएं। कुछ विटामिन सप्लीमेंट लिख दी है, वो टाइम से लें। और प्रिस्क्रिप्शन देते पेशेंट वराना अंदाज में बोली थी। नईमा बेगम उसके सिराने बैठी थी। वो नाराज़ है मुझसे मामा, वो छोटी छोटी बातों पर हो जाता है, फिर मुझसे बात भी नहीं करता। मेरी बात सुने बगैर अपने शरीर तुरंत हिम्मत दे देता है। इसी की वजह से हुआ है ये सब। खामखा का गुस्सा मुझ पर कर देता है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझसे नहीं मामा, वो मुसलसल इन्हें बताते रोते आगे सुर्ख कर चुकी थी। यह मेरी जान, सर दर्द होगा ना, मैं उसकी खबर लूँगी। वो कैसे मेरी बेटी को रुला सकता है। वो जानती थी वो अगर नहीं टेंशन लेती तो बड़ी बात की भी नहीं लेती, और अगर ले जाए छोटी बात को भी नहीं छोड़ती है। इस लम्हे अहान पर गुस्सा आया था। वो सर थामे लाउंज में बैठा था। अजान उसके पास बैठ गई थी, आवाज़ में फिक्र थी। वो थकी शक्ल और आंखें सानी बेगम की जानिब पड़ गया था, जो सोफे पर उसके नज़दीक बैठी थी। खाना खाया तुमने? वो टांगे समेटते उनकी गोद में सर रख गया। सानी बेगम का दिल नर्म पड़ गया। मामा, मैं बेसुकून हूँ, आप मुझसे नाराज़ रहती हैं। हम उनका हाथ अपने सर पर रख गया, आंखें नम सी थी। मामा, वो मेरी ज़िंदगी को पुरसुकून करने की बजाय अजाब बना रही है। सानी बेगम ने उसके पेशानी से बिखरे बाल हटाते थकी सी आंखें देखी। वो उसका हाल जान गई थी। तुम्हारी पसंद है, वो उसके बालों में हाथ चलाते बोलने लगी थी। मामा, शदीद अफसोस है मुझे इस बात पर। वो खुद को पता नहीं क्यों अपनी गलती के बाद भी नहीं संभल रही। इस मामले की जिम्मेदार भी वो मुझे समझ रही है, जैसे मैं खुश होना। वो थकी आंखें मूंद गया था। सानी बेगम उसे देखते रह गई। वो उनका हंसमुख बेटा था, जो अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों में अपने नफ्स पर काबू न करके बेसुकून कर चुका था। उसे नरमी से समझाओ अजान, अपनी तवज्जो दो, वो ठीक हो जाएगी। वो नसीहत ही कर सकती थी अब बस। मैं तवज्जो देने की कोशिश भी करूँ तो वो मेरी अपनाइतों का कंपैरिजन करती है। वो इस चीज़ में खुश नहीं है जो उसे मिल गई है, बल्कि जिसके पास नहीं है वो उसके रोने लेके बैठ जाती है। मुझे कफ़त में मुब्तला करती है वो बेहद मुस्तरब था। वो उसकी बीवी थी, जिससे सुकून की तमन्ना तो दूर, बल्कि वो अपने साथ साथ उसके लिए भी डिप्रेशन ज़रूर खरीद रही थी। मौसम की खराबी के तेवर देखते सिग्नल प्रॉब्लम्स थी। वो रुकती बारिश देखते अब निकला था। फ़ोन सामने लहराया जब बंद हो गया था। कोट बाजू पर डाले, पार्किंग से गाड़ी निकाले। वो दोबारा बारिश से पहले घर पहुंचना चाहता था। बारिश के होने से पहले वो पहुंच गया था। लाउंज में सानी बेगम और अजान को देखते वो खामोशी से गुजरता कि सानी बेगम की आवाज़ ने कदम जकड़े। कहाँ थे तुम? बंदा फ़ोन भी चेक कर लेता है। इजहान उसे नजर चलाते रूम में चला गया था। सिग्नल प्रॉब्लम्स थी खैरियत। वो सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठते बोला। रिहा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। हाँ, ख्याल क्या करो, और तुम भी उसे समझाओ अपनी डाइट का ख्याल रखा करे। मुझे इस मामले में कोई नुकसान नहीं चाहिए। वो सख्ती से उसे वार्न कर रही थी। अब कैसी है? वो परेशान होते अपने रूम के बंद दरवाजे की जानिब देखने लगा। ठीक है, अब मेडिसिन वगैरह दी है, पर उसकी हालत ने मुझे परेशान कर दिया था। खाना खाओगे? उसे उड़ता देख बोली। उसने खाया है कुछ? वो बेचैन होते बोला। हाँ, ज़बरदस्ती खिलाया है, अभी नाइमा उसके पास है। उसे जाते देख उसे आगाह कर गई। मैं उसको देख लूँ पहले। गहरा सांस खींचते रूम की जानिब चला गया। दबेज कदमों से कदम रखा। वो बिस्तर पर पड़ी बंद आँखों से शायद नींद में थी। नाइमा बेगम उसकी चाप से पलटी। उनसे सलाम और हाल अहवाल दुरुस्त
दरियाफ्त करते। उसके नज़दीक ही बिस्तर पर बैठा बात करने है मुझे हान जी। वो चौंकते उसके चेहरे से नजरें हटा गया। उसकी नींद खराब ना हो, अभी सोइए, वहाँ सोफे पर आ जाओ। कुछ बात हुई है क्या तुम दोनों में? वह नजरें चुरा गया। क्या तुम दानिन की बात होगी असर में हो तो क्या तुम मेरी बेटी पर शक? नहीं चाची, मुझे उसके करैक्टर के लिए किसी की गवाही नहीं चाहिए। वो दृष्टि से बात काट किया था। आन वो सख्ती बर्दाश्त करने वाली नहीं। मैं उसकी साइड हरगिज़ नहीं ले रही जितनी वो लापरवाही दिखाती है न, पर कुछ चीज़ों में वो बहुत हसास हो जाती है। उसकी कंडीशन का ख्याल करो, वरना फिर मैं उसे डिलीवरी तक साथ ले जाती हूँ। वो उसको देखते कतरे समझाती बोली। आखिरी बात पर उसके तासुरात को देखते बोली थी, कोई बात नहीं हुई, ऐसे ही मैं उसका ख्याल खुद रख लूँगा। मुझे अंदाज़ा है कि उसने शिकायत लगाई मेरी। वो लगता बात उसकी जानिब देखे कि आज बंद आँखों से बेखबर पड़ी थी। नहीं, ज़्यादा नहीं लगाई। वो मुस्कुरा गई थी, पर बहुत स्ट्रेस लिया है उसने। अब ऐसा नहीं होगा। इनका हाथ दबाते यकीन दिलाने करा रहा था। वो उसके रूम से चंद बातें करती चली गई तो अशावल अब फ्रेश होते उसकी जानिब आया था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।